Hello, students of FY BCom. Congratulations on clearing your first year BCom with flying colors. Now we move to the next stage, that is admission of second year BCom. So what are we supposed to do and how are we supposed to fill the form? I will explain this to you through a step-by-step guide. All right. I am Dr. Mohammad Fazil Sharif, and I will be your guide for the day. So what you need to do first is go to this website, CIMS Student New UI.Microsoft. Simply scan this, it'll take you to that website. I've created a scan code. Simply scan this scan code and it'll take you to that website. Before I proceed, let me inform you that this video is only for those students who have completed Pune FY BCom from Pune College. If you are not from Pune College and are taking admission in second year, you need to come and contact us. We will give you a different website from where you have to register. All right. Now, the students of Pune College, your first step is to log in over here. Log in. How will you log in? You will use your user ID and password that you use in the student diary app. Attendance जिस पे देखते हो आप, the same app, the same user ID and password you use. In case you do not remember, there is an option of get user ID oblique password. Click on that. I will show you the things ahead. Okay, anyway, so you'll log in over there. You'll sign in. You'll fill up the detail admission form online. In that SY BCom A students, this is very important. A division students will go to division A of SY BCom. B division students of FY will go to B division of SY. C division of F first year will go to C division of second year. D of first year will go to D of second year. Okay, so your division continues basically. Now, question is about E, F, G, H students. E will go to A. See over here, it is written. E will go to A division. F will go to B division. G will go to C division, and H will go to D division. All right. And the selection of subject, that is the only thing that you need to do in this admission form. Your previous year's data, your previous year's photograph, signature, everything will automatically come in. Okay. आपको लास्ट ईयर का सब डेटा आ जाएगा आपका. सिर्फ आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन टाइम पे केयरफुली काम करना है. आपको एफवाई की मार्कशीट अपलोड करना है और सब्जेक्ट का काम करना है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द वीडियो टू कम. ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट योर पोर्टल विल लुक लाइक. जब आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे जाओगे. यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे एंड कैप्चा डालोगे. अगर आपको याद नहीं है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज क्लिक ओवर हियर गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड. व्हेन यू क्लिक गेट यूजर नेम पासवर्ड, आपको वो ऑप्शन आ जाएगा. यू फिल इन द मोबाइल नंबर. आपके एसएमएस पे आपको डिटेल्स आ जाएंगे. देन यू एंटर योर यूजर नेम ओवर हियर एंड योर पासवर्ड ओवर हियर, कैप्चा, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट स्क्रीन. After you log in, this is your account. Okay, this is your Pune College account. यहाँ पे you can see over here online registration. You can see over here online registration. यहाँ पे देखो online registration. जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसे खुलेगा. Personal address वगैरह वगैरह, all details you need to fill. So when you click on the first one, personal, here your name and everything will by default come. Last year आपने जो भरा था, same details will come. If you want to change anything, you can. Suppose your email ID has changed, so you can change your email ID over here. Or your mobile number has changed, so you can change that over here. Whatever. ठीक है? Once you do this, now in personal details, the most important part is the eligibility number and ABC ID. So here under other details, ये these details आपके हो गए. At under other details, you will need to enter that. So you passport details अगर है तो आप enter करिए, नहीं करोगे तो भी चलेगा. Parents details आपको mandatory डालना है. You click and click fill details. Next you click on other details. In other details, you will have to enter your eligibility number. इस एलिजिबिलिटी नंबर का पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू इन योर एडमिशन ग्रुप. आई विल शेयर इट. आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट फाइल बिलो दिस वीडियो. तो आप बिलो वीडियो के नीचे क्लिक करके आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी नंबर का फाइल मिल जाएगा. वहां से आपका एलिजिबिलिटी नंबर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ओके. आधार नंबर आपका अगर नहीं है तो आपको अपडेट करना. जो स्टार मार्क्ड है वो चीजें मैंडेटरी आपको एंटर करना है. उसके बिना फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं. सो प्लीज मेक श्योर कि आपके सारे स्टार मार्क डिटेल्स एटलीस्ट भरे हुए हैं. ओके. नेक्स्ट आफ्टर दिस you will go to the address section. वहां पे एड्रेस आप डाल दोगे अपना, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड परमानेंट एड्रेस. ये सब आपको कंपलसरी है. और बाद में अगर आपका सेम एड्रेस है, लोकल और परमानेंट, क्लिक करो और लोकल एड्रेस भर. नहीं अलग है तो लोकल एड्रेस आपको एंटर करना है. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज पर्सनल डिटेल्स. यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लास्ट ईयर का और आपका सिग्नेचर बाय डिफॉल्ट आएगा. इफ यू वांट टू चेंज द फोटोग्राफ, क्लिक ऑन अपलोड, अपलोड अ न्यू फोटोग्राफ. इफ यू वांट टू चेंज योर सिग्नेचर, क्लिक ऑन अपलोड, अपलोड द न्यू सिग्नेचर. बट रिमेंबर, फोटोग्राफ के लिए साइज 500 KB है और सिग्नेचर के लिए साइज 300 KB है. इसके अंदर रहना चाहिए, लेस देन 500 और लेस देन 300 रिस्पेक्टिवली फॉर फोटो एंड सिग्नेचर. एंड देन यू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट.
नाउ कम्स योर पार्ट ऑफ योर एग्जाम डिटेल्स। लास्ट ईयर के FY BCom में आपने क्या स्कोर किया, कैसे स्कोर किया? ओके, what was your SGPA for both the semesters? One second, hold on please. Now where will you find your SGPA? See in your mark sheet जो आपने ऑनलाइन रिजल्ट निकाला है, वहां पे नीचे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर SGPA दिया हुआ है एंड सेकंड सेमेस्टर SGPA दिया है. These both values you have to enter over there and you have to select these, enter these two values. You need to enter these two values over here and you need to select the result as pass if you've passed or fail, ATKT, whatever it is. Okay, CGP automatic calculate हो जाएगा. Click save on next. After this, you will be asked to select document. Now in this, you need to select and upload a document. See, FY mark sheet you have to upload over here. आधार कार्ड, कास्ट कैटेगरी अगर आपका है तो प्लीज कास्ट कैटेगरी भी अपलोड करिए. इट इज नॉट मैंडेटरी, बट आपका OBC, SC, ST कुछ है तो यहाँ पे अपलोड कीजिए. और मार्कशीट तो मैंडेटरी अपलोड करना है. तो वट एवर यू सिलेक्ट, आई सिलेक्ट FY का मार्कशीट सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना है वहां पे. नेक्स्ट, हियर कम्स द मेजर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन. सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या करना है आपको? होल्ड ऑन. ओके, सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या करना है आपको? यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट इंग्लिश एज द मीडियम. मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप आपका क्या है आपका डिसाइड होगा. नाउ फॉर एग्जांपल, A डिवीजन का बैंकिंग है, B डिवीजन का कॉस्टिंग है, C डिवीजन का मार्केटिंग है और D डिवीजन का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है. जो भी एप्लीकेबल आप सिलेक्ट करोगे. नाउ लुक हियर, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. A division costing, banking, sorry. Division A is banking. Division B is costing. यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट देखना है आपको. Banking, B is costing, C is service marketing, C is marketing and D is business administration. Okay, ये चार ऑप्शन आपको दिखेंगे. Banking, costing, marketing, administration. Whichever is your specialization in first year, आपको वही स्पेशलाइजेशन लेना है. जो आपका डिवीजन फर्स्ट ईयर में था आपको वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है. सिर्फ EFGH वाले E वाले A करेंगे, B वाले F वाले B करेंगे, G वाले C करेंगे, H वाले D करेंगे. ओके, you know how it is. Okay, now this is a very important page. Please take a screenshot of this page. If you are an A division student, आपको सिर्फ A वाला आपसे मतलब है, बाकी आपको देखना नहीं है. If you are a B division student, these are your subjects. If you're a C division student, these are your subjects. If you're a D division student, these are your subjects. Okay. Now, बैंकिंग इंश्योरेंस आप सिलेक्ट करोगे तो ये दो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे. आपको इधर ऐड पे क्लिक करना है तो सब्जेक्ट्स आपके ऐड हो जाएंगे. या अगर कॉस्टिंग वाले हो आप तो ये वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके बाय डिफॉल्ट. आपको ऐड करना, दो ही आ रहे हैं अभी, बाकी के हमको सिलेक्ट करना है. मार्केटिंग वाले ये आ जाएंगे सब्जेक्ट्स, ऐड करना है. या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो आप, D डिवीजन वाले हो तो आपने ये सिलेक्ट करना है और उसके ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, इसको ऐड करना है. ऐड, अब ये स्टूडेंट जो है ये कॉस्टिंग का है जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ. इस स्टूडेंट के देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया तो ये कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए उसके. ठीक है, कॉस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, उसका मेजर जो है कॉस्टिंग डिवीजन B वाला कंटिन्यू हो गया. यहाँ पे आपको इसके अंदर सेव एंड नेक्स्ट करना है. आफ्टर एडिंग यू डू सेव एंड नेक्स्ट. आफ्टर डूइंग सेव एंड नेक्स्ट, नाउ दिस कम्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये, इसको ध्यान से देखिए और समझिए. मेजर ग्रुप आपका तो कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग आएगा, बैंकिंग है तो बैंकिंग, जो भी है वो आएगा. उसमें सब्जेक्ट कैटेगरी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सब मेजर ग्रुप देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया. कॉस्टिंग वाला मैंने पहले किया था तो यहाँ कॉस्टिंग ऑप्शन आएगा, बाकी दूसरे ऑप्शन नहीं आएंगे. ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे को कैटेगरी. आपको भी माइनर में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. OE का एक सब्जेक्ट है, IKS का एक सब्जेक्ट है, AEC का एक, ऐसे सबका एक 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 करके 1 by 1 करना है. तो पहले माइनर लेते हैं. तो माइनर पे क्लिक कर दिया तो मेरे को यहाँ पे क्या है ऑप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसको ऐड बटन पे क्लिक करना है तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स नीचे आ जाएगा. ओके, फिर वापस से जाना है सब्जेक्ट कैटेगरी में. यहां से ओपन इलेक्टिव सिलेक्ट करना है और फिर बाद में क्लिक करूंगा तो मेरे को ये आया, इसको ऐड कर देना है. देन आई हैव टू गो अगेन टू दिस प्लेस, IKS लेना है, फिर ऐसे एक एक करके सॉल्व करना है. ओपन इलेक्टिव हो गया, IKS क्लिक किया तो मेरे को 4 ऑप्शन आ गए. नाउ व्हिच वन शुड आई सेलेक्ट? नाउ रिमेंबर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ B डिवीजन, आई एम कॉस्टिंग, सो आई विल सेलेक्ट दिस. इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बैंकिंग A डिवीजन, आप पहला वाला ऑप्शन लोगे बैंकिंग. अगर आप ऊपर C डिवीजन के हो तो आप यहाँ पे मार्केटिंग सिलेक्ट करोगे. अगर आप यहाँ पे D डिवीजन के हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे. ये थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है आपको. ओके, सिलेक्ट करने के बाद ऐड करोगे. ऐड करने के बाद नेक्स्ट वापस से जाओगे इस पे. यहाँ पे आप AEC सिलेक्ट करोगे. AEC इज एबिलिटी एनहांसमेंट. यहाँ पे आपको ऑप्शंस है. आपने अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, उर्दू और हिंदी, ये दोनों ऑप्शंस है.
प्लीज अगर आप उर्दू मीडियम से हो, आपने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की है, तो आपने उर्दू ही सिलेक्ट करना है। उर्दू का 100% 100% रिजल्ट आता है। So please ensure that you select Urdu only if you are confident you have been studying Urdu in your school days or whatever, आपको उर्दू आती है तो ही आप उर्दू सेलेक्ट करिए। अदरवाइज प्लीज सेलेक्ट हिंदी। ओके, उर्दू हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट करना है, उसको ऐड करना है, नेक्स्ट करना है। देन फील्ड प्रोजेक्ट। फील्ड प्रोजेक्ट में अगेन आप अगर बैंकिंग के हो तो आप ये लोगे, कॉस्टिंग के हो तो ये लोगे, मार्केटिंग के हो तो ये, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, विच एवर इज एप्लीकेबल आप वो करोगे। अगेन यू क्लिक हियर एंड नाउ यू डू, ये आपके 7 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। 7 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे नीचे, ऐड करके एक एक करके ऐड किया ना तो 7 बार आपने 7 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। नाउ क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। तो उसको पूछेगा अगर आपने 6 किए फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मिस एनी सब्जेक्ट, वो आपको बोलेगा प्लीज एड द 7 प्रेफरेंसेस। तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न जाना है और आपको चेक करना है कौन सा, ये लिस्ट जो थी ना, ये वाली लिस्ट, इसमें से कौन सा रह गया उसको सिलेक्ट करके उसको ऐड करना है। अगर कोई रह गया तो आइडियली इसलिए कहता हूँ 1 बाय 1 जाइए, पहले माइनर करिए फिर ये 1 बाय 1 यू शुड गो अहेड, डोंट जंप एनीवेयर। ओके, तो अगर जब तक 7 नहीं हो तो आगे बढ़ने देगा ना वो। 7 हो गए आपके, उसके बाद में यू विल हैव टू क्लिक एंड सेव, and after selecting the subjects you will be taken to a page where you need to make a payment of rupees 200 for the admission form। ये आप पेमेंट यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो। तो आप स्कैनर, क्यूआर कोड आएगा, आप उसको मोबाइल से स्कैन करके आप अपना 200 रुपीज पे कर दीजिए। ओके, वंस यू मेक द पेमेंट आपको ये बताएगा यू कैन नॉट अपडेट डेटा वंस कंफर्म बाय, आप प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू क्लिक करिए और आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, आपने जो कुछ डेटा एंटर किया है वो सारा आपको डेटा दिखेगा एंड यू कैन डिसाइड whether you want that same data or are there any changes or whatever। अगर all okay आपने भरा है, you can click on confirm। once you by clicking confirm ये टिक करना है और कंफर्म करना है। जब कंफर्म करोगे पूछेगा are you sure you cannot update application later। हमारे एंड से हम अपडेट कर सकते हैं बट आइडली आप मेक श्योर कि आप अपना फोटो वगैरह सब प्रॉपर डालो, सही चीज अपलोड करो, सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से करो। ओके, एंड देन यू क्लिक ओके, तो आपको ऐसे आएगा मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके आपको कॉलेज में आना है। कॉलेज में आना है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आना है आपको कॉलेज में? फॉर्म के साथ, फॉर्म का प्रिंट लाना है और डॉक्यूमेंट्स लाना है। ये देखो फॉर्म ऐसे दिखेगा आपका, 3 पेज का फॉर्म आएगा और उसके अंदर सारे डिटेल्स ऐसे भरे होंगे। ये मैंने दूसरे स्टूडेंट का इसलिए मैंने इसको हाइड किया है, बट सेशन दिखेगा आपको, SYBCom 26-27 सब कुछ आपका आ जाएगा। अब सब डिटेल्स आपने जो जो भरे हैं सारे यहाँ पे एंट्री करके आ जाएंगे। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने वो ये है, FYBCom का रिजल्ट के 2 कॉपीज, HSC आपकी मार्कशीट जो है 12th की उसके 2 कॉपीज, आधार कार्ड के 2 कॉपीज, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है उसके 2 कॉपीज। आपको कॉलेज में आना है, 10 से 1 के बीच में आके हमसे मिलना है, सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करना है और आपको पेमेंट करके, फीस पे करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है। क्विक रिवीजन क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, पासवर्ड भूल गए हो तो गेट यूजर आईडी पे क्लिक करना है, एसएमएस आएगा आपको और आपको वहां से एंटर करके डिटेल साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद में आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है। ए डिवीजन ई डिवीजन स्टूडेंट्स विल सेलेक्ट ए, बी एंड एफ विल सेलेक्ट बी, सी एंड जी विल सेलेक्ट सी, डी एंड एच विल सेलेक्ट डी। ओके, ये स्कैन करके आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद में आपको 200 रुपए फीस ऑनलाइन पे करना है, एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको कॉलेज में आना है विद द डॉक्यूमेंट्स जो मैंने मेंशन किए हुए हैं। कॉलेज टाइमिंग में आपको आना है और आपको पेमेंट करके अपनी फीस पे करके आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। वी शैल बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स वेरी सून और हम एक शेड्यूल डालेंगे किसको, कौन से स्टूडेंट्स को कब आना है। प्लीज फॉलो दैट शेड्यूल एंड कम अकॉर्डिंगली। ओके, आई विल बी शेयरिंग दिस इमेज ऑल्सो विथ यू। I will be sharing all the details, all the files, everything. If you have any doubts anywhere, feel free to write comment below and I will respond to your comment within 24 hours. I'll respond to your query immediately. So please try and fill the form appropriately. Subject selection बहुत carefully करना है आपको based on your division. Banking का है, costing का है, marketing का है या administration का है. Whatever it is, उसके हिसाब से अपना FY के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप SY का स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू करोगे। ओके, एनी डाउट्स फील फ्री टू राइट कमेंट बिलो एंड आई विल रिस्पॉन्ड और यू कैन वॉक इनटू द कॉलेज डायरेक्टली, आइए और हमसे मिलिए और हम आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, दिस इज डॉक्टर शरीफ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।